Everyone, my name is Renu Verma and welcome back to my channel. So, my little champs, how are you? I hope that everybody is fine. And you know which festival is coming? Holi, the festival of colors, right? And I think everybody likes that, especially kids. So I would request all the lovely champs and their mothers, अगर आपने होली वाली वीडियो नहीं देखी है, so please must watch. I have discussed 10 important points that the every child should learn about Holi. So link is given in the iCard. Please must watch. All right. And I think topic आपने thumbnail में देख लिया होगा. Today we are going to learn few steps that is very important to introduce reading. ओके आप बच्चे को रीडिंग कराने से पहले वो 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी बच्चा रीडिंग करना सीख पाएगा. ओके आप बच्चे को रट्टे मत लगवाइए CAT CAT BAT BAT. नो, there are few steps. With the help of few steps the child will be able to read properly. Okay, so as I said that we will learn few steps, so let's start. So before that, I would say that please subscribe and press the bell icon so that you never miss an update, because it's बहुत effort लगता है वीडियो बनाने में. तो please आपका एक like will definitely motivate me a lot. Thank you, and please watch the complete video, 4 points, and in the end I will just give you a small tip. Okay, so take that tip. All right, now let's start. So first step is that Jolly Phonics. Okay, why I said that Jolly Phonics? Because Jolly Phonics focus on the multi-sensory approach, right? Because children learns with the all their senses, their eyes, their hands, right? So there are action for each letter, right? So you should follow the Jolly Phonics. All right, तो बच्चे को Jolly Phonics आने चाहिए so that the child will able to read and recognize the sound of each letter. This is the first step. ऑल राइट, अगर आपके बच्चे को फोनिक साउंड्स नहीं आते हैं, जॉली फोनिक्स नहीं आते हैं, इट्स ओके. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जॉली फोनिक्स, सो यू कैन जस्ट रेफर माई वीडियोज एंड start making your child learn jolly phonics. Okay, and second important step is vowels, right? So the child should learn about the 5 vowels. I think सारे बच्चों को पता होता है A I O U, right? तो ये क्या है, 5 vowels है, right? But 5 vowels तो है, but 5 vowels they make 20 sounds, right? So it's not like that कि आपने बच्चे को 5 vowels बता दिए, 20 साउंड्स भी इन वॉवल से 20 साउंड्स बनते हैं, वो साउंड्स भी बच्चे को आने चाहिए. ओके, सो प्लीज अगर अगर आपके बच्चे को वो 20 साउंड्स नहीं आते हैं तो प्लीज फोकस ऑन दैट. एंड अगेन आई वुड से दैट ये सारे टॉपिक्स मैं आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करूंगी, सो डोंट वरी. ऑल राइट, so we have done 2 steps. First of all, jolly phonics. Second is vowel, and vowel make 20 sounds, so the child should aware of all the 20 sounds. Now let us move on the third point, and the third important point is digraph. Now might be some mothers are thinking digraphs क्या होते हैं, right? डोंट वरी, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट येस बच्चों की रीडिंग के लिए डायग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डायग्राफ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू आर bringing 2 letters together and they are making one new sound. Okay, there's a mistake. SOUND, there should be D, that's why there's a mistake. So 2 letters make one sound. Like for example, can you see the picture of shop? Shoes, right? Now shop, ship, shine, शूज एक्सेट्रा, राइट? तो जब हम एस का साउंड क्या होता है, एच का साउंड क्या होता है, see I'm doing action. This is the best part of the jolly phonics. Each letter, each sound has some action, and along with the action, जब बच्चा एक्शन करता है तो बच्चे को हमेशा माइंड में याद रहता है, राइट? तो जब हम को दोनों को साथ में ला रहे हैं तो क्या साउंड बना रहा है, श. तो बच्चा कैसे रीड करेगा, श ओ प, शॉप, राइट? श ई प, शिप, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सारे साउंड्स आने चाहिए और वॉवल्स के साउंड आने चाहिए और स्पेशली डायग्राफ बच्चे को आने चाहिए. ओके, नाउ डायग्राफ्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्सोनेंट डायग्राफ एंड वॉवल डायग्राफ, राइट? कॉन्सोनेंट एंड वॉवल, राइट? श
तो एस पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एच पी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, राइट। आई थिंक सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि देर आर 5 वॉवल्स और बाकी के जो 21 लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। एस बी कॉन्सोनेंट है, एच बी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट डायग्राफ। ओके, नाउ मूव करते हैं हम वॉवल डायग्राफ पे। तो वॉवल डायग्राफ्स क्या होते हैं, व्हेन देयर आर टू वॉवल्स टुगेदर एंड दे आर मेकिंग अ न्यू साउंड, right? Now for example, can you see the picture of moon? Moon, right? तो in moon there are two o, right? तो जब दो o साथ में आ रहे हैं, o का साउंड क्या होता है, o, on on off, right? बट यहां पर दोनों o जब साथ में आ रहे हैं तो क्या साउंड बना रहे हैं, म ऊन, राइट। तो ओ का साउंड नहीं, ऊन का साउंड आ रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज रेन, रेन, एन। तो जब हम ए और आई, अगेन दो वॉवल है, ए भी एक वॉवल है और आई भी एक वॉवल है, जब हम दोनों को साथ में ब्लेंड करें तो क्या साउंड बन रहा है, एन। आई का साउंड नहीं आ रहा है, एन। ओके, नाउ बोट, ब ओट। तो ओ और ए क्या साउंड बनाते हैं, ओट, ओट, ऑल राइट। तो ओ का साउंड ज्यादा ऊपर जा रहा है, ए का साउंड है ही नहीं, बोट, बोट, सी। तो these are vowel digraph and consonant digraph. Now the fourth important point is that the child should learn before starting reading, and see these are the famous digraph जो हम kindergarten में या फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चे को पता होने चाहिए और हम पढ़ाते हैं। श, एस और एच को प्लस करेंगे तो श बनेगा, सी और एच को प्लस करेंगे तो च, डब्ल्यू एच व, एंड पी एच फ, एंड देयर इज टी एच थ। अब टी एच थोड़ा सा ट्रिकी है, टी एच में थ का साउंड भी आता है एंड टी एच द का साउंड भी बनाता है, राइट। तो पहले आप था साउंड ही पढ़ाइए, उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को बताइए कि टी एच ही द भी होता है, तो जब हम देम पढ़ते हैं तो द का साउंड आ रहा है, ठीक है। All right. Now the next one and the last one is consonant blending. The fourth point is consonant blending. As I said, there are 5 vowels and rest all the letters are consonant, right? तो consonant blending में क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, when two or more consonants are blend together. Blend का मतलब होता है mix करना, right? But each sound may be heard in blending, right? तो सबसे important बात ये है कि जब हम दो कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करते हैं तो दोनों लेटर्स का साउंड आता है, राइट। रिमेंबर जब हमने डायग्राफ किया था तो डायग्राफ में क्या हो रहा है, 2 लेटर्स एंड 1 साउंड। इन कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग 2 लेटर्स and 2 letters each sound is coming, like for example black, blue, blind, blink, blue, right? तो जब हम B और L को प्लस कर रहे हैं तो क्या साउंड आ रहा है, B का साउंड क्या होता है ब, L का साउंड क्या होता है ल, ल। तो हम क्या साउंड बना रहे हैं, ब्ल, ब्ल, एक्। पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट आपको ये चारों पॉइंट याद रखने हैं, जॉली फोनिक्स बच्चे को आने चाहिए। नहीं आते हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक से, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। वॉवल्स 20 साउंड्स बनाते हैं तो वो भी आपको बच्चे को आने चाहिए अच्छे से। डायग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्सोनेंट डायग्राफ एंड वॉवल डायग्राफ, राइट। एंड जब हम डायग्राफ करते हैं इट मीन्स 2 लेटर्स 1 साउंड, ओके। Consonant blending means that you are blending 2 consonant and they are giving 2 sounds. All right. Now, so thank you so much and keep learning. And in the end, as I said that I am going to give you a tip. अगर आपके बच्चे को डायग्राफ और ब्लेंडिंग दोनों चीजें आती हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट अगेन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उस क्लैरिटी के लिए आप बार बार उनसे पूछते रहिए, कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, 2 letters 2 sound, right? Digraph means 2 letters 1 sound, okay? तो आप मिक्स करके बच्चे से पूछते रहिए, एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर डायग्राफ्स भी लिख दीजिए, उसके ऊपर कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग के भी कुछ वर्ड्स लिख दीजिए, राइट। एंड नाउ यू कैन टेल देम टू सर्कल द
digraph sound, you can tell them to circle the consonant blending sound. Okay, this is how एक बच्चे को clear picture मिल जाएगी, right? So this is all for today. Thank you so much. Bye bye.